Alaskar sir. Over to you, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome, everyone. Thank you for joining us for today's webinar. I, Dr. Preeti Udgave, Assistant Professor of Department of Agat Tantra. I would like to take this opportunity to introduce the speaker of second session, Dr. Mujahid Alaskar, sir. Sir is a district consultant for National Tobacco Control Program for Sangli district under NCD program of National Health Mission in Maharashtra. NTCP mainly focused on implementation of a cigarette and other tobacco products Act 2003. It includes awareness, hazards, and dangerous effects of a tobacco in public, mainly in schools and colleges. Make IECs about CO2, COTPA 2003, establishment of a tobacco cessation centers at government hospitals, monitoring implementation of a COTPA 2003. He also works as a technical support for other programs under non-communicable diseases like National Oral Health Program, Cancer Monitoring Program, Hypertension and Diabetes Disease Monitoring in a district, and also works as a Senior National Quality Assurance Standards Assessor and Trainer of Maharashtra State. So I would now request Dr. Alaskar sir to share his experiences. Over to you, sir. Thank you, madam. Am I audible? Yes, sir. Yes. My slides are visible. Yes, sir. Thank you. First of all, I thank Dr. Halingale sir. He covered lots of all topics almost, and left me this tobacco addiction. Thank you, sir. So I will use Hindi and English to communicate better. So today's my topic is understanding tobacco, harms, mode of addiction, tobacco cessation, and COTPA Act 2003, the Cigarette and Other Tobacco Products Act 2003. So I will start with introduction of tobacco. What is a tobacco? Tobacco is a Nicotina tabacum, which come from Portuguese in India. Uh, uh, when uh, uh, when it uses start in India, it used as a medicine purpose to pain relieving. Uh, अभी भी हम थोड़ा टूथ एक होता है तो जो देहात में है वो यूज किया जाता है ये प्रियंका दी पाटोले. modes of tobacco use. Mainly smoke and smokeless are mode of tobacco. In smoke, cigarette, bidis, hookahs, and chirut are mainly used, and in smokeless, gutka, mawa, pan with tobacco, mishri, khaini, jarda, chewing tobacco are used in India. In smoke, there are three types of smoke: first hand smoke, second hand smoke, and third hand smoke. First hand smoke is who is person using the smoke or cigarette is the first user. सेकेंड हैंड स्मोक, इफ अगर एक खाली जगह पर कोई स्मोकर स्मोकिंग करके गया हुआ है और वहां पर दूसरा इंसान आकर रुकता है और इनहेल करता है तो वो सेकेंड हैंड स्मोक हो गया. और थर्ड हैंड स्मोक वो है जो अगर उसका टार अगर जमीन पर पड़ा या किसी सरफेस पर पड़ा है वो हाथ को लगकर अगर किसी के जुबान से अंदर जाता है तो वो थर्ड हैंड स्मोक हो गया. But in India, basically smokeless tobacco is used majorly, and it's a point of interest for our WHO also, क्योंकि अपना जो साउथ एशिया वाला एरिया है स्मोकलेस टोबैको का प्रेवलेंस बहुत है. अगर हम गूगल पर भी सर्च करते हैं तो स्मोकिंग वाला हमको मटेरियल बहुत मिल जाता है. स्मोक के बारे में रिसर्च बहुत है, बट स्मोकलेस का उतना रिसर्च अभी तक हुआ नहीं है. बट इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये वाला जो बेल्ट है वहाँ पर स्मोकलेस टोबैको का यूज बहुत होता है. मेजरली पान, मावा या जिसे खर्रा बोलते हैं इसका जरा इस्तेमाल ज्यादा होता है. इवन च्यूइंग टोबैको ऑल्सो. टोबैको
टोबैको के लिए इतना क्यों हम कंसर्न है, तो ये है ल्यूकोप्लेकिया, इरिथ्रोप्लेकिया, कैंसर, दिस ऑल्सो कैंसर, और ये प्रिवेंटेबल है। प्रिवेंटेबल है इसलिए हम ज्यादा इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। तो ये फोटो आप सबने देखा होगा, हम मूवीज को जाते हैं तो ये मुकेश है। तो मुकेश ये 25 इयर्स का था, थोड़ा ही वक्त उसने गुटखा इस्तेमाल किया और वो एक्सपायर हो गया उसके अर्ली एजेस में। तो इस मैटर ऑफ वरी अभी हम देखते हैं थोड़ा सा इसका आईसी चेंज हुआ है। अब सविता बोलकर एक फीमेल है 24-25 एज की, उसका डेथ हुआ है, उसके 2 बच्चे अनाथ हो गए हैं। तो इट कंसर्न नाउ शिफ्टेड टुवर्ड्स अ फीमेल टोबैको यूज, मोस्टली स्मोकलेस टोबैको। इन महाराष्ट्र, स्पेसिफिकली मैं महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ, तो यहाँ का सिनेरियो ऐसा है कि 1/3 ऑफ एडल्ट यूजेस टोबैको। स्मोकिंग 6.6% है, कम है बट इट्स ऑल्सो लार्ज नंबर। स्मोकलेस 27.6% है, और मेनली इन महाराष्ट्र वुमेन्स आर यूजिंग स्मोकलेस टोबैको, और डिपेंडेंस इसका 64.6% है। अगर कोई पेशेंट आता है, हम उसे पूछते हैं कि आप स्मोकिंग करते हो या फिर कुछ टोबैको खाते हो क्या, तो वो नहीं बोलते हैं। बट जब उनको पूछते हैं कि आप मिश्री यूज करते हो क्या, तो वो हाँ बोलते हैं। तो उनको पता भी नहीं कि हम इतना हार्मफुल सब्सटेंस ले रहे हैं। इसका डिपेंडेंस बहुत ही हजार्ड से 64.6% है। दैट्स व्हाई इट्स मैटर ऑफ कंसर्न। Morbidity and mortality. Morbidity is the single largest cause of preventable morbidity and mortality worldwide. It's the single largest cause. It kills more people than malaria, TB, AIDS, HIV combined. मगर अब आप कहोगे कि ऐसे पेपर में तो कहीं नहीं आता कि टोबैको खाने से कोई मर गया। तो ये अलाइड है। अगर कोई टोबैको यूजर है तो उसे टीबी आगे हो जाएगा या फिर और कोई दूसरे बीमारी से वो एक्सपायर हो जाएगा, बट मोस्टली उसका जो रूट कॉज होता है वो टोबैको होता है। और अपना इंडिया में, अगर सर ने अभी ये बताया कि बहुत सारे ड्रग्स हैं, बट ये टोबैको ऐसा है कि ये सब तरफ इजीली मिल जाता है, और इसके लिए हमें इसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। इन इंडिया हाईएस्ट रेट ऑफ ओरल कैंसर इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में अपना ओरल कैंसर इंडिया में हाईएस्ट है, और उसमें से ज्यादा महाराष्ट्र में है, वो भी नागपुर वाला एरिया। नागपुर वाला एरिया कैपिटल ऑफ ओरल कैंसर बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे खैनी नाम का एक मावा जैसा एक इस्तेमाल होता है, वो ड्राइड टोबैको से बना हुआ होता है। तो वो बहुत ही डेंजरस है। ओरल कैंसर का बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पर रेट है। 13% of deaths in India caused by tobacco. Why? हमको इतना क्यों सोचना है कि क्यों टोबैको इतना मुश्किल है? तो टोबैको का जो स्मोक है, अगर स्मोकिंग के बारे में कहा जाए तो 4000 केमिकल्स हैं अलग अलग, एसीटोन, अमोनिया, फिनॉल, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट हैं उसमें सिर्फ स्मोकिंग के अंदर। उसमें से 43 कार्सिनोजेनिक है। नाइट्रोसामाइन्स, बेंजापायरेंस, ऐसे जो जिनसे कैंसर होता है, ऐसे उसमें से 43 कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है। हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ टोबैको यूज, इसमें से अगर टोबैको यूज रिकरेंट हो रहा है तो आईज में मैक्यूलर डिजनरेशन होगा, हेयर लॉस होगा, स्किन में एजिंग जल्दी होगा, बुढ़ापा जल्दी आएगा, व्रिंकल्स आएंगे, वुंड इन्फेक्शन हील नहीं होंगे, ब्रेन का स्ट्रोक हो सकता है, माउथ और फेरिंग्स का कैंसर, गम डिसीज हो सकता है, लंग्स में कैंसर हो सकता है, एम्फेजिमा हो सकता है, निमोनिया कॉमन है, हार्ट में कोरोनरी आर्ट डिसीज होता है, स्टमक का कैंसर है, पैनक्रियास कैंसर, ब्लैडर कैंसर, वुमन में सर्वाइकल कैंसर, अर्ली मेनोपॉज, इरेगुलर एंड पेनफुल पीरियड्स हो सकते हैं। मेंस में भी सेम इम्पोर्टेंसी हो सकती है, स्पर्म काउंट कम हो सकता है। तो हम जो अब एनसीडी पे काम कर रहे हैं, ये बेसिकली इन 3 डिसीज पर काम कर रहे हैं फिलहाल। पोटेंशियली मैलिग्नेंट ओरल कैविटी डिसऑर्डर्स, पीएमओडीएस जिसे बोला जाता है। कॉमन प्री कैंसरस लीजन है, उसमें एक ल्यूकोप्लेकिया है जिसे हम व्हाइट पैच कहते हैं, दूसरा है इरिथ्रोप्लेकिया है, और तीसरा है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। तो इसमें जो फर्स्ट ल्यूकोप्लेकिया है उसमें व्हाइट पैच बन जाता है, दही खाने के बाद अंदर अगर कैसे होगा, और वो वेल डिफाइंड रहता है, हमें पता चल जाता है। इरिथ्रोप्लेकिया जो है
जो इरिथ्रोप्लेकिया है वो रेड पैच है, वो ग्रैन्युलर पैच है, रेड पैच। हमें वेल डिफाइंड रहता है, पता चल जाता है कि ये इरिथ्रोप्लेकिया है। इसको एनसीडी में इसके लिए अलग से जो सर्वे है इसका हर पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में हो रहा है अभी। और ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, OSMF जिसे हम कहते हैं, उसका पिक्चर में दिखाता हूँ। ये जानबूझकर मैंने फुल पिक्चर रखा हुआ है क्योंकि ये बहुत कॉमन है। अगर हम सब डॉक्टर्स हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई टोबैको च्योर आता है तो उसका देखिए उसका माउथ ओपनिंग नहीं रहेगा, इट्स ओनली 1 और 2 फिंगर्स ओपन। तो ये सबसे डेंजरस, ये प्री कैंसरस थिंग्स हैं, तो इनको हमें स्क्रीन करना चाहिए। तो ये कुछ खूबसूरत फोटोज हैं, अगर हमको ये हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इतना डेंजरस है पूरा अनहाइजीनिक ओरल कैविटी। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा टोबैको पर ज्यादा फोकस रखना चाहिए। तो टोबैको क्या है, कैसे देखा, तो व्हाई डू पीपल स्टार्ट यूजिंग टोबैको, मोड ऑफ एडिक्शन, एडिक्शन होता कैसे है। तो सर ने भी बताया है, बहुत अच्छे से बताया है, तो मैं थोड़ा सा उसे इलेबोरेट करना चाहूंगा। इसके मेनली 3 फैक्टर्स है, एक इन्वायरमेंटल है, दूसरा इंटरनल है, तीसरा एक्सटर्नल है। इन्वायरमेंटल में आ जाता है टोबैको इन्वायरमेंट और कम्युनिटी नॉर्म्स। इसमें टोबैको इन्वायरमेंट जो है उसमें एक्सपोजर टू टोबैको मार्केटिंग, दूसरा आएगा इमेजेस ऑफ टोबैको यूज इन पॉपुलर मीडिया, थर्ड है एक्सेस, और फोर्थ है प्राइस ऑफ टोबैको। एक्सपोजर ऑफ टोबैको मार्केटिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा काम हमको करना पड़ता है अगर हम टोबैको के फील्ड में काम कर रहे हैं तो, क्योंकि ये जो आईटीसी है या फिर जो टोबैको लॉबी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत मनी मेकिंग बिजनेस है उनका, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उसके ऊपर काम करते हैं। अगर हम किसी स्कूल के पास जाएंगे तो 3 फुट का जो डिस्टेंस रहता है, आजू बाजू में कोई ना कोई तो शॉप रहेगा, 3 फीट के डिस्टेंस पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं, बहुत कलरफुल रहते हैं। 3 फीट्स क्यों होता है, क्योंकि बच्चों का हाइट उतना होता है, तो बच्चा जाते जाते देखते हुए जाता है, उसके अंदर क्यूरोसिटी बन जाती है। तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है, जो कोटपा एक्ट है उसके अंदर उसका प्रोविजन है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इमेजेस ऑफ टोबैको यूज इन पॉपुलर मीडिया, अब पॉपुलर मीडिया पहले जैसे बस टीवी या फिर न्यूज़पेपर नहीं रहा है, तो सोशल मीडिया बहुत इसके अंदर काम कर रहा है, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तो या फिर OTT प्लेटफॉर्म है। अगर आप जो नया प्लेटफॉर्म बनाए जैसे अमेजॉन प्राइम रहेगा या नेटफ्लिक्स रहेगा, तो बहुत ज़्यादा तरीके से जो भी टोबैको है उसका इस्तेमाल वो करते हैं, तो वो बच्चों पर असर होता है, वहाँ से फिर शुरुआत होती है टोबैको यूज करने की। तो एक्सेस इसका जो थर्ड पॉइंट है कि इजीली एक्सेसिबल है। शायद कोई मेडिकल जो है जहाँ से हमको कोई ड्रग परचेस करना हो तो वो नहीं मिल पाता जल्दी, बट हर एक घर के बाहर पड़ेंगे तो 100-200 मीटर के डिस्टेंस पे हमको कोई भी टोबैको शॉप मिल ही जाएगा, तो इतना इजीली एक्सेसिबल है। तो ये भी एक रीजन है एडिक्शन होने का। प्राइस ऑफ टोबैको, इसके ऊपर काम हो रहा है, अभी जो टैक्सेशन है उसके ऊपर बढ़ रहा है, बट फिर भी प्राइस अगर एक्सेस कम है तो ज़्यादा उसका कंज्यूम हो रहा है। कम्युनिटी नॉर्म्स, अडल्ट स्मोकिंग रेट, अब स्मोकिंग के लिए बताया गया है, बट हमारे यहाँ पर तो स्मोकलेस है, तो उसका जो रेट है एडल्ट में स्मोकलेस या स्मोकिंग करने का, वो रेट ज़्यादा है। तो बहुत ऐसे क्या बोलते हैं, वो यूज टू हो गया है हर एक घर पे, कि कोई भी घर पर बड़ा आता है वो खाता है, तो बच्चों पर असर होता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन स्मोकिंग और स्मोकलेस टोबैको, एटीट्यूड टू यूथ एंड इट्स कल्चर, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एटीट्यूड टू यूथ कि वो देखते किस तरीके से हैं टोबैको को। अगर उनका कुछ स्टिग्मेटस देख रहे हैं कि या अब जैसे बाकी के ड्रग्स हैं उनको स्टिग्मा है कि ये दारू लेता है, ये खराब है, बट कोई टोबैको खा के बैठा है तो वो ऐसे कोई स्टिग्मा नहीं है, तो स्टिग्मा हमें क्रिएट करना चाहिए। उसे स्टिग्मा नहीं रहने की वजह से लोग उसके तरफ जलते हैं। और फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट है सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चर। तो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों में इसका परसेंटेज ज़्यादा है टोबैको यूज करने का। और कल्चरल नॉर्म है, जैसे कहा जाता है विड़ा घेणे,
तो पहले तो कुछ बीड़ा में तंबाकू नहीं था, बट वो बाद में ऐड हो गया है। तो थोड़ा सा इसके वजह से जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इसके वजह से एडिक्शन होने का प्रमाण ज्यादा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसमें आता है फैमिली इन्फ्लुएंस। फैमिली इन्फ्लुएंस में हम पेरेंटल स्मोकिंग या सिबलिंग स्मोकिंग पे ज्यादा फोकस्ड रहना चाहिए। स्मोकिंग या स्मोकलेस टोबैको, अगर घर का कोई बड़ा बुजुर्ग पेरेंट्स हैं या फिर सिबलिंग है, मीन्स बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, या छोटा भाई है, छोटी बहन है, अगर टोबैको का इस्तेमाल करते हैं किसी भी तरीके से, तो मोर चांसेस हैं कि वो बच्चा या फिर वो पर्सन एडिक्शन की तरफ जाएगा। और उसके बाद में पेरेंटल वैल्यूज, किस तरीके से उसका चढ़न घड़न हुआ है, पेरेंटिंग कैसे हुआ है बच्चों का, इसके ऊपर बहुत डिपेंडेंस है कि वो एडिक्शन होगा या नहीं होगा। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, यह भी बहुत क्रुशियल है, क्योंकि हर एक लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में बहुत ज़्यादा टोबैको का इस्तेमाल किया जाता है, स्मोकलेस का भी, स्मोकिंग का भी। और अगर हम स्कूल्स में वगैरह जब हम लेक्चर्स लेते हैं, तो ये जो सेकंड पार्ट है एक्सटर्नल फैक्टर में का, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं कि साइको सोशल इन्फ्लुएंसेस, यहाँ पे पीयर एफिलिएशंस एंड फ्रेंडशिप और सेंस ऑफ एलियनेशन, ये बहुत वहाँ पर इफेक्टिव है, क्योंकि एक छोटे बच्चों में या फिर स्कूल गोइंग बच्चों में अपना ग्रुप रहते हैं, उनके छोटे छोटे ग्रुप रहते हैं 4-5 लोगों के। तो वहां से उनका अगर उसमें से एक या दो बंदे अगर कोई सिगरेट या फिर टोबैको खाते हैं, तो बाकी के बच्चों पर पीयर प्रेशर आ जाता है तंबाकू लेने के लिए। तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए, और उस स्कूलिंग के टाइम से वो फोकस रहना चाहिए कि ये स्टिग्मा बना देना चाहिए कि स्मोकिंग या फिर टोबैको लेना ये गलत बात है। बच्चों में सेंस ऑफ एलिनेशन आता है कि मैं अलग ना पड़ जाऊं इनसे, मेरे अगर फ्रेंड्स अगर टोबैको ले रहे हैं तो मुझे भी लेना चाहिए, नहीं लूंगा तो मैं अलग हो जाऊंगा। इस तरीके का कुछ उनके में साइको सोशल इन्फ्लुएंस बनता है, और फिर वो टोबैको लेने शुरू करते हैं। इसके ऊपर ज्यादा फोकस हमें रहना चाहिए अगर हम किसी का काउंसलिंग करते हैं तो। इंटरनल फैक्टर्स हैं, इसमें पर्सनल बिलीफ्स हैं, वैल्यूज हैं। तो इसमें नो रिस्क इन ट्राइंग, कि करके देखते हैं कुछ नहीं होगा, तो ऐसे नहीं रहता है, तो वो इसकी वजह से एडिक्शन हो जाता है। इट वोंट हैपन टू मी, इतना सारा सब आईसी हो रहा है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन हो रहा है टोबैको के बारे में, कि कैंसर हो रहा है, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो बस कैंसर के लिए काम कर रहे हैं, मगर ये मुझे नहीं होगा, ऐसे पर्सनल बिलीव्स की वजह से एडिक्शन हो जाता है। क्यूरोसिटी, इंडिविजुअल चॉइस, ये भी बहुत की रोल इसमें है, कि क्यूरोसिटी की वजह से लोग लेते हैं। परसेप्शन ऑफ स्मोकिंग और स्मोकलेस नॉर्म्स, पर्सनल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है इसमें, प्यूबर्टी, एडोलसेंस, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपना गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी। इस एज फैक्टर, इस एज के बच्चों में हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं कि इनके ऊपर अच्छे से पता चले, उनको सही से मैसेज जाए कि टोबैको अच्छा नहीं है। तो इसके ऊपर काम चल रहा है। तो बट ये एक फैक्टर है, क्योंकि एड्रेनलिन रश रहता है तो बच्चे उस एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं, और जेनेटिक्स भी काम करता है इंटरनल फैक्टर्स पे। व्हाई इट इज सो हार्ड टू क्विट, क्यों इतना मुश्किल है ये तंबाकू छोड़ना? बाकी बहुत सारे एडिक्शन हैं, और जैसे अल्कोहल है या फिर बाकी ड्रग्स एडिक्शन है, उनके ऊपर डायरेक्ट असर हो जाता है, या फिर मेडिसिन देकर भी हो जाता है, काउंसलिंग देकर भी हो जाता है। बट टोबैको इतना क्यों हार्ड है क्विट के लिए? तो इसमें बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, तीनों फैक्टर बहुत एक विशियस साइकिल बना देते हैं, इसलिए बहुत मुश्किल है टोबैको का एडिक्शन छुड़ाना। इसमें बायोलॉजिकल है कि फिजिकल एडिक्शन रहता है, विड्रॉल सिम्टम्स जो आते हैं उसके लिए इंसान बहुत डर जाता है, यूज करते हैं तभी रिलीफ मिलता है, उसी का रिवॉर्ड बन जाता है। साइकोलॉजिकल है, उसमें पेयर्ड एक्टिविटीज रहते हैं, जैसे बाहर अगर टपरी पे चाय पीने कोई जाता है तो साथ में सिगरेट लगता है, या फिर किसी दोस्त के साथ होता है तो उनको वो दोस्त मिलता है तो उसके साथ मावा होता है तो वो खा लेता है। रूटीन हैबिट्स बन जाते हैं, जैसे अगर टोबैको नहीं खाएंगे सुबह में तो सुबह में पेट साफ नहीं होगा, ऐसे साइकोलॉजिकल बन जाता है। एक्चुअली उस जरूरत नहीं है, अगर टोबैको खाने से ही पेट साफ होता तो हम सबको जरूरत पड़ती है ना, तो ऐसे होता नहीं है, उनको हमको समझाना पड़ता है। और ये जो फैक्टर है बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करता है, क्योंकि पूरा नाइट उनको विड्रॉल रहता है टोबैको का, और सुबह में उनको लेना ही पड़ता है। तो ट्रिगर्स रहते हैं,
अगर बाकी के किसी एडिक्शन में ट्रिगर्स का उतना रोल नहीं होता, बट जो टोबैको है इसमें ट्रिगर्स का बहुत रोल होता है। मीन्स हाँ, अपने जेब में लाइटर का रहना, या तंबाकू की पुड़ी रहना, या फिर चूने की पुड़ी रहना, अगर दूसरे के पास भी वो दिख जाएगा तो इट वर्क्स एज ए ट्रिगर। अगर वो देखता है किसी लाइटर को, तो उसे लगता है कि हमें अब लेना चाहिए, स्मोकिंग करना चाहिए। तो ये फैक्ट करता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस आने के बाद, नहीं मुझे सिगरेट या तंबाकू खाने के बाद ही अच्छा लगेगा, ऐसे सोचते हैं लोग और लेते हैं। कोपिंग विथ इमोशंस, कुछ इमोशनल ब्रेकडाउन के वक्त भी टोबैको का सहारा लिया जाता है, इसलिए भी बहुत मुश्किल है क्विट कराना। और सोशल है, जैसे कनेक्शन है, फिटिंग इन, जो हमने इसके पहले भी बताया, सेंस ऑफ एलियनेशन। तो फिटिंग इन के लिए भी लिया जाता है कि 4 लोगों में बैठना उठना है तो थोड़ा सा तंबाकू खाना पड़ेगा। जैसे चौपाला होता था, चौराहे पर लोग बैठते थे, तो वहां पर बैठ के हुक्का, जैसे मैं तेरा हुक्का पानी बंद कर दूंगा, ये जैसे कहा जाता था। तो इस तरीके से फिटिंग इन ये बहुत मायने रखता है कि हुक्का पानी बंद कराना में सोशल उसे अलग करा देना। तो ये इसके लिए लोग फिर चौपाले पर बैठ के हुक्का लेते थे। तो ये भी बहुत मुश्किल है, इसलिए क्विट कराना। फैमिली है, पार्टनर है, कल्चरल नॉर्म्स पर तो हमने बात किया है। तो इसके लिए हम क्या करना चाहिए और कैसे होता है एडिक्शन? तो निकोटिन है, एक अल्कोलॉइड है। तो ये रूट्स में या जो लीव्स रहते हैं उनके में रहता है। अगर ये प्रूवन है कि निकोटिन एडिक्शन हैज हिस्टोरिकली बीन वन ऑफ द हार्डेस्ट एडिक्शन टू ब्रेक, इट्स प्रूवन। Nicotine enters in a bloodstream from the mouth and carried throughout the body. It affects many parts of the body, including your heart, blood vessels, your hormones, your metabolism, and your brain. Even during pregnancy, nicotine freely crosses the placenta. इतना निकोटिन डेंजरस है। इसका विशियस साइकिल है, जिसे हम आयुर्वेद में विष चक्र कहते हैं। तो इसमें निकोटिन लेवल ड्रॉप जैसे हो जाता है, स्मोकर या फिर स्मोकलेस टोबैको लेने वाला डिस्कम्फर्ट फील करने लगता है, विड्रॉल सिम्टम आने लगते हैं, फिर से वो स्मोक करता है, या फिर स्मोकलेस टोबैको जो मावा है लिया जाता है, उसके बाद में निकोटिन का लेवल बढ़ जाता है, डोपामाइन सिक्रेट होने लगते हैं, और स्मोकर या स्मोकलेस टोबैको यूजर फील्स इंस्टेंट रिलीफ, प्लेजर महसूस होता है। फिर से थोड़े वक्त के बाद निकोटिन का लेवल ड्रॉप होने लगता है, फिर से यही जो विशेष साइकिल है शुरू हो जाती है। विष चक्र है, इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। ये निकोटिन कैसे काम करता है इसका थोड़ा सा डिटेल है, इस जरूरत नहीं है हमें, हम नेक्स्ट जाते हैं। तो हमने देखा कि क्या है टोबैको, क्या उसका डिसऑर्डर है, निकोटिन क्या है, क्यों इसका इतना हजार्ड्स है। तो प्रोसेस ऑफ टोबैको सिजेशन, सबसे ज्यादा जो की रोल आज तक हमने जो रिसर्च में देखा है कि टोबैको में जो सिजेशन के लिए है, काउंसलिंग पार्ट बहुत अच्छे से काम किया है किसी भी मेडिसिन के बजाय। तो काउंसलिंग पार्ट है, हम सांगली में अभी 8 जगह पर हमारे टोबैको सिजेशन सेंटर्स हैं, वहाँ पर काम चल रहा है। वहाँ पे काउंसलर्स हैं, डेंटल सर्जन्स हैं, वो उसके ऊपर काम करते हैं। तो एक कैसे होता है ये मैं थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूँगा। तो स्टेप बाय स्टेप हमें कैटेगराइजेशन करना चाहिए पेशेंट का। डज द क्लाइंट करंटली यूजेस टोबैको? अगर नो है तो हैज द क्लाइंट यूज्ड टोबैको इन द पास्ट? अगर पहले यूज किया है तो मेंटेनेंस जरूरी है, अगर नहीं यूज किया है तो इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। क्लाइंट करंट टोबैको यूजर है तो विलिंग टू क्विट। तो विलिंग टू क्विट बहुत जरूरी है कि उस इंसान को लग रहा है कि मुझे टोबैको छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। अगर यस है तो हमें 5 A's की तरफ से जाना है, नो है तो 5 R's की तरफ जाना है। तो दोज हु आर विलिंग टू क्विट, जो 5 A's हैं उसका थोड़ा सा हम देखेंगे। 5 A's में जो पहला है आस्क, बाद में है एडवाइस, फिर है असेस, फिर असिस्ट है, फिर अरेंज है। इसका हम थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। स्टेप आस्क है तो सिस्टमेटिकली हमको टोबैको यूजर को आइडेंटिफाई करना है, उससे बात करनी है कि आप टोबैको किस तरीके से। फैगस्ट्रोम स्केल एक है जिससे हम निकालते हैं कि उसका डिपेंडेंस कितना है। तो ये आस्क में हमें वो निकालना है कि सुबह में कितने वक्त के बाद आपको टोबैको लेने की जरूरत पड़ती है,
कितना लेना पड़ता है, आपके ट्रिगर्स क्या हैं, इसका सबका हमें डॉक्यूमेंटेशन करना है आस्क में। उसके बाद में जो हमें देखना है कि उस कौन से स्टेज में है। सर ने ये बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कंटेम्पलेशन स्टेज होता है, प्रिपरेशन स्टेज होता है, एक्शन स्टेज होता है, मेंटेनेंस, रिलैप्स और प्री कंटेम्पलेशन स्टेज होता है। ये स्टेज क्या होता है? तो प्री कंटेम्पलेशन स्टेज है, इसमें करंट स्मोकर और स्मोकलेस टोबैको यूजर who are not planning on quitting smoking in next 6 months, ये बहुत 6 मंथ बहुत जरूरी है। कंटेम्पलेशन फेज जो है, करंट स्मोकर्स और स्मोकलेस टोबैको यूजर हु आर प्लानिंग ऑन क्विटिंग स्मोकिंग इन द नेक्स्ट 6 months बट हैव नॉट मेड क्विट अटेम्प्ट इन पास्ट ईयर। ये बहुत जरूरी है कंटेम्पलेशन फेज जानने के लिए। प्रिपरेशन फेज है, करंट स्मोकर्स और स्मोकलेस टोबैको यूजर हु आर definitely planning to quit within next 30 days and have made a quit attempt in a past year। ये 30 days हमें फोकस रखना चाहिए। क्यों, ये मैं आगे बताऊंगा। एक्शन फेज है, इंडिविजुअल्स हु आर नॉट करंटली स्मोकिंग एंड हैव स्टॉप्ड स्मोकिंग विद इन पास्ट 6 months। और मेंटेनेंस फेज है, इंडिविजुअल्स हु आर नॉट करंटली स्मोकिंग एंड हैव स्टॉप्ड स्मोकिंग फॉर लॉन्गर देन 6 months। 6 month बहुत ही ज्यादा इसमें हमें फोकस रखना चाहिए। एडवाइस है, जैसे ही पेशेंट आता है उन्हें हमें झट से एडवाइस नहीं करना कि नहीं आज से आप तंबाकू खाना छोड़ दो, ये सही नहीं है। हमें उनको पहले जज करना है, वो कौन से स्टेज में है देखना है। उसके बाद में स्ट्रांगली अर्ज्ड ऑल टोबैको यूजर्स टू क्विट, उसमें क्लियरली पर्सनलाइज्ड मैसेज देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पुअर है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करता है, तो उसे जो पैसे वाला साइड है वो उसे बताना है कि यार तेरे इतने पैसे बचेंगे, तो अगर ये पैसे तुझे मिलते हैं तो तू तेरे फैमिली के लिए लगा सकता है। या फिर जो हमने देखा कि एडिक्शन होता कैसे, उसमें पेरेंटल वैल्यूज क्या है, तो वो उन्हें बताना है कि अगर तुम स्मोकिंग कर रहे हो तो आगे चल के तुम्हें कैंसर हो सकता है, और ये तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी तरफ देखकर टोबैको खाने शुरू करें तो वो भी, उनको भी कैंसर हो सकता है, तो इसलिए तुम्हें बंद करना चाहिए। क्लियर, स्ट्रॉन्ग, पर्सनलाइज्ड मैसेज हमें देना है एडवाइस में। तो उस वक्त हमें यह भी बताना है कि अगर वो क्विट करते हैं टोबैको लेने का तो क्या हो सकता है। तो इसका ये थोड़ा सा है कि विद इन 20 minutes बॉडी स्टार्ट टू हीलिंग, विद इन 12 hours कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल इन ब्लड ड्रॉप टू नॉर्मल, 2 weeks to 3 months heart attack risk drops and lung function begins to improve, 1 to 9 months coughing and shortness of breath decreases, within 1 year risk of heart attack drops sharply, after 2 to 5 years risk of stroke is similar to that of the person who never smoked, after 5 years risk of mouth, throat, esophagus and bladder cancers are cut in half, after 10 years risk of lung cancer is cut in half। और इसमें जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं उसके अंदर है कि एपेटाइट बढ़ता है। तो ये उसे बताना चाहिए कि अगर आप अभी आपका तबीयत ठीक नहीं रह रहा है या टोबैको यूज की वजह से, तो आफ्टर क्विटिंग आपका जो एपेटाइट बढ़ेगा, आपका वजन बढ़ जाएगा, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो स्टेप 3 है असेस, डिटरमाइन विलिंगनेस टू क्विट अटेम्प्ट। अभी हमें यहाँ पर देखना है कि वो अभी छोड़ने वाला है या उसे और कुछ प्लान कराना है। ठीक है, तो क्विट प्लान बहुत जरूरी है। इसके हमें एक क्विट डेट फिक्स करनी होती है कि आपको आज छोड़ना है, आज का डेट आप ले लो। या फिर उसका विलिंग नहीं है तो विद इन 2 weeks या फिर आने वाले पूरे 30 days में अगर कुछ फंक्शन है, अगर मुस्लिम है कोई ईद है, या फिर हमारे हिंदू भाई हैं तो उनका कोई दीपावली है या कोई फंक्शन है, या फिर उनके बच्चे का बर्थडे है, या फिर उनके वाइफ का बर्थडे है, या पेरेंट्स का बर्थडे है, या उनका खुद का बर्थडे है, या कुछ स्पेशल ओकेजन है उनके लाइफ का, तो वो डेट हमें उनको बतानी है कि आप इस डेट से आपको शुरू करना है टोबैको छोड़ने का। उसमें हमें फैमिली को भी अप्रोच होना है, उनके फ्रेंड्स को अप्रोच होना है, को वर्कर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लाइफ में के 8 से हर दिन में के 8 से 10 घंटे हम वर्कर्स के साथ रहते हैं, तो उनको भी इनका सपोर्ट लेना है। जो चैलेंजेस आने वाले हैं वो भी उनको बताने हैं कि निकोटिन विड्रॉल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, वो बताने हैं।
जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं वो वहां से निकालने हैं, जो ट्रिगर्स हैं वो भी निकालने हैं। ट्रिगर्स जैसे रहा एश ट्रे रह गया, या लाइटर है, या टोबैको का पाउच है, या फिर जो चूना यूज किया जाता है उसका पाउच है, या फिर उनका ट्रिगर ये भी हो सकता है कि वो जिस रूट से जाते हैं वहां पे उनका वो टोबैको शॉप है, वो दिखने के बाद उनको लगता है कि लेना है टोबैको, तो उनको बोलना है कि रोड भी आप चेंज कर दो, दूसरे रोड से चले जाओ। तो ये क्विट प्लान बनाना बहुत जरूरी है। जहां पर स्मोकिंग किया जाता है या फिर जहां पर टोबैको खाई जाती है, ऐसे प्लेसेस अवॉइड करना बहुत जरूरी है उनके वर्क प्लेस के वहां पर। तो ये क्विट प्लान में हमें उनके साथ बात करना है, और क्विट डेट जब आती है तब उस दिन से हमें उन्हें उनको सपोर्ट देना है, काउंसलिंग वाला। प्रोवाइड प्रैक्टिकल काउंसलिंग, जो भी वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो बहुत जरूरी होता है। पास्ट क्विट एक्सपीरियंस जो होता है उनका वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत बार कैसे होता है कि स्ट्रेस की वजह से लिया जाता है, फिर से लैप्स रेट बहुत है, बहुत ज्यादा लैप्स रेट है टोबैको में। तो फिर कुछ स्ट्रेस आता है तो हमें बोलना है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ बात करो, तो फिर या फिर आप आपके वाइफ के साथ बात करो, या फिर आप आपके फ्रेंड्स के साथ बात करो अगर कुछ आपको बैड एक्सपीरियंस आ रहा है, कुछ स्ट्रेस आ रहा है तो। बट डोंट गो टू टोबैको। जो ट्रिगर्स हैं वो उनको आइडेंटिफाई करके देना है कि अगर ये आपके सामने आ रहा है तो ये आपका ट्रिगर है, आप इसे अवॉइड करो। अगर कोई करीबी फ्रेंड है उसके साथ उससे टोबैको खाने की आदत है तो थोड़े दिन के लिए उनको अवॉइड करना चाहिए, और साथ में अल्कोहल नहीं लेने की भी सलाह उनको देनी चाहिए। और उनके जो घर के लोग हैं, कोवर्कर हैं, उनको हमें पहले बताना चाहिए कि हम इनको इनकरेज करें क्विट प्लान के लिए। मेंटेनेंस पे भी ये बहुत जरूरी है, 6 मंथ्स उनको मेंटेन रखना है। ओनली अबाउट 4% ऑफ दोज हु क्विट फॉर मोर देन 2 years इवन गो बैक टू टोबैको यूज। तो अगर इतना ये 4% ही लोग हैं जो टोबैको छोड़ सकते हैं, रिलैप्स रेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें बहुत फोकस्ड रहना पड़ता है। हमको इसका एक्सपीरियंस जो सांगली में आया है उसका हमारा जो टोबैको क्विट रेट है 2 to 3% ही है, हम जितना काउंसलिंग किए हैं। मगर जो अपना इंडिया का है वो 4% है। स्टिल वी आर वर्किंग ऑन इट। फार्माकोथेरेपी है, बट जहाँ तक हमने पेशेंट्स देखे हैं फार्माकोथेरेपी का उतना असर हुआ नहीं है। तो उसमें 2 टाइप के फार्माकोथेरेपी है, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी एक है और नॉन निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, बस मैं बताऊंगा क्या है। निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी में निकोटिन का रिप्लेसमेंट दिया जाता है, वो इन अलग अलग तरीके से इसमें पैचेस दिए जाते हैं, नेजल स्प्रे है, निकोटिन गम है, इनहेलर है, लॉजेंजेस है, तो ये दिया जाता है। बट इसका कभी कभी एडवर्स इफेक्ट भी है, क्योंकि स्मोकिंग जो रहता है वहां पर हमें जज कर सकते हैं कि कितना निकोटिन जा रहा है विथ नंबर ऑफ सिगारेट्स। बट विथ smokeless tobacco, it's very difficult to calculate the number of nicotine is using that person। तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इसलिए निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्मोकलेस के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नॉन निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, वहाँ पर 2 जो फर्स्ट लाइन ड्रग है यूज की जाते हैं, ब्यूप्रोपियन है और वर्निसिलिन है। ये जो साइकेट्रिस्ट है उनके असिस्ट में लिया जाता है। विड्रॉल सिम्टम्स क्या आते हैं और हमें काउंसलिंग के वक्त क्या बताना चाहिए। अगर विड्रॉल सिम्टम आ रहा है तो उसे अल्टरनेट हमें हर एक बात देना चाहिए। उसमें डिप्रेस्ड मूड हो तो वॉकिंग, हॉबी, म्यूजिक, इस तरीके से उनको करने के लिए बोलना चाहिए। इंसोम्निया रहेगा तो बुक्स का अच्छे बुक्स उन्हें रिकमेंड करनी चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर रहेगा तो अच्छी हॉबी, गुड कंपनी, म्यूजिक, इसका हमें उनको सजेशन देना चाहिए। एंजाइटी रहेगा तो रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, योगा, ये बहुत अच्छे से काम करता है योगा। हम सांगली में जो प्रजापति ब्रह्मा कुमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी हेल्प लेते हैं, उनका सेशन रहता है, उनका योगा सेशन है उनका, तो वो लिया जाता है तो उसका बहुत अच्छे से इफेक्ट होता है। तो एपेटाइट गेन होगा तो हेल्दी स्नैक्स लेने के लिए उनको बोलना चाहिए। लैक ऑफ कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, तो अवॉइड स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट के बारे में उनको बताना चाहिए। काउंसलिंग पार्ट बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर्स डाइट लेने के लिए बोलना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स,
लेने के लिए बोलना चाहिए। और जो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड है वो ज़रूरी है। हेडेक रहेगा तो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड एंड प्रैक्टिस रिलैक्सेशन, ईट स्मॉल स्नैक्स, ये भी उनको बताना चाहिए। स्टेप 5 है अरेंज। उसके बाद में जो है हमें उनका फॉलोअप अरेंज करने की बहुत ज़रूरत रहती है। तो फर्स्ट फॉलोअप रहेगा फर्स्ट वीक में, मीन्स क्विट डेट आज की है तो आज से बराबर 1 वीक के बाद हमारा उसका पहला हमारा मीट होगा। तब हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे उनको विड्रॉल सिम्टम आया, क्या किया उन्होंने, विड्रॉल सिम्टम आने के बाद उनका रिएक्शन क्या रहा, या फिर से उनको लगा कि टोबैको खाना चाहिए। इसके बारे में डिटेल में बात किया जाएगा। सेकेंड फॉलोअप 1 मंथ बाद होगा। उसके बाद में शेड्यूल जो नेक्स्ट 6 मंथ है, हर मंथ को एक बार उनका फॉलोअप होगा, उनका सक्सेसफुल क्विट अटेम्प्ट होने तक। जो 6 मंथ है बहुत जरूरी है। सम कॉमन प्रॉब्लम जैसे हमने बताया, क्योंकि विड्रॉल सिम्टम कभी कभी कोप अप नहीं हो पाता है, लैक ऑफ सपोर्ट फॉर सजेशन, कभी कभी उनके फैमिली में से सपोर्ट नहीं मिलता है, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, तो उस वक्त टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी जरूरी है। निगेटिव मूड बनता है तब उनको बताना चाहिए, जैसे हमने विड्रॉल सिम्टम के लिए बताया। तो अगर बहुत ही स्ट्रांग और प्रोलॉन्ग्ड विड्रॉल है तो फार्माकोलॉजिकल थेरेपी भी हमें लेना चाहिए उसके लिए। दोज हु आर नॉट विलिंग टू क्विट, यहाँ पर हमें 5 आवर्स का सहारा लेना पड़ता है। तो 5 आवर्स में रिलेवेंस, रिस्क, रिवॉर्ड, रोड ब्लॉक्स और रिपीटेशन। रिलेवेंस है क्यों आपको इम्पोर्टेंट है टोबैको क्विट करना, ये उन्हें बताना है। सेकंड हैंड एक्सपोजर क्या होता है, ओवरऑल हेल्थ पर क्या असर होता है, रिलेवेंस के लिए बताना है। रिस्क है निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है, जैसे हमने देखा कैंसर होता है, इरिथ्रोप्लेकिया है, ल्यूकोप्लेकिया है, जैसे डेथ हुआ है, या फिर उनके कोई करीबी रिलेटिव है उनका अगर डेथ हुआ है कैंसर की वजह से, तो वो उनको बताना है। रिस्क क्या क्या है उनको डिटेल में बताना है। जो रिवॉर्ड्स हैं, जैसे हमने देखा टोबैको छोड़ने के बाद कितना अच्छा उनको रिवॉर्ड मिलता है, तो वो उन्हें हमें बताना चाहिए। रोड ब्लॉक्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि विड्रॉल सिम्टम्स के लिए विड्रॉल सिम्टम्स को डर के ही फिर से शुरू हो जाते हैं टोबैको यूज़ करना, तो वो रोड ब्लॉक्स उन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए, और यही बात रिपीटेशन करना चाहिए। जो 5 आवर्स है वो बहुत ज़रूरी है अगर कोई इंसान नहीं क्विट करना चाहता है तो सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट, जो कोटपा एक्ट 2003 है, उसका थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा मैं। इसमें जो 4 कलम है, कलम 4, कलम 5, कलम 6 कलम 6 और कलम 7, तो इसमें सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपानास बंदी, 200 का फाईन आहे, कंपाउंडेबल बेलेबल ऍक्ट आहे। तंबाखूजन्य पदार्थाच्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जाहिरातीवर बंदी, जो एडवर्टाइजमेंट है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट रहेगा, तो 1000 से 5000 का फाइन है, और 2 साल से 5 साल तक का इम्प्रिजनमेंट है। ये नॉन कंपाउंडेबल बट बेलेबल है। कलम 6 है, जो हम ज़्यादा फोकस्ड उसके ऊपर काम करते हैं, 18 साल से जो माइनर्स हैं उनको अगर टोबैको सेल किए जा रही है, उनकी तरफ से सेल की जा रही है, तो उसे 200 का फाइन है। या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसके 100 यार्ड एरिया में अगर कोई टोबैको का सेल कर रहा है तो उसे भी बंदी है, तो उसके भी 200 रुपीज़ का फाइन है। ये बढ़ने वाला है आने वाले कुछ समय में। ये कंपाउंडेबल है, बेलेबल एक्ट है। और जो 7वां कलम है उसमें तंबाकूजन्य जो भी पदार्थ है उसका जो कवर रहेगा उसके ऊपर 85% धोखे की सूचना रहनी चाहिए कि टोबैको से कैंसर होता है। अगर जो उत्पादक है उसका पहला गुना रहेगा तो 2 साल का इम्प्रिजनमेंट है या 5000 रुपीज़ का फाइन है। अगर विक्रेता का पहला गुना रहेगा तो 1 साल का इम्प्रिजनमेंट और 1000 रुपये का फाइन है। ये नॉन कंपाउंडेबल बेलेबल है। इसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स रहता है, इन्फोर्समेंट स्क्वाड रहता है, वो काम करता है, जो हर एक जगह पर जाकर छापा डालने का काम करते हैं, रेड डालते हैं, और वहाँ से जो फाइन वसूल किया जाता है या फिर उनके ऊपर कोर्ट केस किया जाता है। ये अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष जो जाहिरात है उसके ऊपर भी बहुत काम हो रहा है। जो अलग अलग बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो अगर कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाती है। तो हम जो तंबाकू विरोधी शपथ है ये मराठी में हम लेंगे, मैं बोलूँगा, आप पीछे से बोलिए। तंबाखू जर्दा खर्रा, तसेच बीडी, सिगारेट, ई हुक्का, ई सिगारेट याच्या दुष्परिणामांची मला जाणीव आहे, म्हणून मी जन्मभर या व्यसनांपासून दूर राहण्याचा संकल्प करीत आहे। माझे कार्यालय, माझे घर आणि माझा परिसर तंबाखूमुक्त राहावा,
तसेच इतरांनी तंबाखूजन्य पदार्थाचा परित्याग करावा यासाठी मी प्रयत्न करेन. भारत सरकारच्या 2003च्या तंबाखू नियंत्रण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी मी सतत प्रयत्नशील राहीन. माझ्या अधिपत्याखाली व जिल्ह्यातील सर्व आरोग्य संस्था, शाळा, शासकीय कार्यालये तंबाखू मुक्त तसेच ई सिगारेट मुक्त करेन. मी माझे कार्यालय, माझे घर, माझे गाव, माझी शाळा, माझी संस्था आणि माझा महाराष्ट्र राज्य तंबाखू मुक्त करण्याचा प्रयत्न करेन. तंबाखू व ई सिगारेटला नाकार, करा सुदृढ आरोग्याचा स्वीकार. Say no to tobacco. Say no to tobacco. Thank you. Any questions? Welcome. काही क्वेश्चन्स असतील तर विचारू शकता. Thank you, sir, for your valuable lecture. Hope your lecture will be fruitful for all the participants. I am not telling you it's going to be easy. I am telling you it is going to be worth it. So be addicted to your recovery. Now it's my privilege to propose a vote of thanks on this occasion. I, Dr. Preeti Udgave, on